Today we are going to talk about a reflection of light. The phenomenon of bouncing back of light from a surface is called a reflection of light. Suppose we have a mirror, a polished mirror, which reflects most of the light incident on it. A ray of light, when falls on this surface, it bounces back and travels in a new straight line. This is called reflection of light. The ray of light that falls on that surface is called incident ray, and the ray of light that bounces back and travels in a new straight line is called reflected ray. यहाँ तक ठीक है बेटा? Okay. This incident ray and this is reflected ray. If I draw a perpendicular at the point of incidence, this is called a point of incidence. The point at which the ray of light is incident, where the ray of light falls on the surface is called point of incidence. This is point of incidence. अगर point of incidence पे एक perpendicular डालता हूँ, that perpendicular is called normal. दो चीज़ें याद रखनी है. The angle between this incident ray and the normal is called angle of incidence. Angle I, that's angle of incidence. The angle between the reflected ray and the normal is called angle of reflection. Angle R, angle of reflection. ठीक है बेटा? अच्छा, reflection of light जैसा आप जानते हैं, it follows two laws. It follow two laws, जिनको हम बोलते हैं laws of reflection. जिनको हम बोलते हैं laws of reflection. पहला लॉ बताता है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन. जिस प्लेन में इंसिडेंट रे होगी उसी प्लेन में ये रिफ्लेक्ट होके स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी. दिस इंसिडेंट रे, दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, which is a perpendicular drawn at the point of incidence, they all lie in the same plane. The law number two is the angle of incidence, angle I, is always equal to the angle of reflection, that is angle R. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. These are the two laws of reflection. So reflection is bouncing back of light from a surface, and the light that hits that surface is incident ray, and the ray of light that bounces from the surface, then bounces back from the surface and travels in a new straight line is called a reflected ray. The 90-degree or the perpendicular drawn at the point of incidence is called a normal. Incident ray, normal and the reflected ray all lie in same plane. बेटा दो laws होते हैं. एक लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करेंगे. दे लाई इन द सेम प्लेन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जब कभी भी रेज ऑफ लाइट कहीं पर भी मीट करती है तो वो इमेज बनाती है. व्हेन रेज ऑफ लाइट meet or appear to meet at a point, they form image. So we have two types of images. Number one is a real image, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे. और दूसरा टाइप जो है, that's virtual image. आज हम एक सिंपल सा केस प्लेन मिरर का उठाते हैं, लेकिन प्लेन मिरर पे
इमेज जो बनती है उससे पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज दे आर सेम प्लेन में इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई करता है। और तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स in straight path. That's called a rectilinear propagation of the light. Rectilinear propagation of light. अगर आपसे कोई पूछता है what is rectilinear propagation of light, तो आप जवाब देंगे that rectilinear propagation of light means that light always travel in straight path. तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उस पे आते हैं। अगर मेरे पास कोई मिरर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मिरर बनाता हूँ, प्लेन है, बिल्कुल प्लेन मिरर, या मैं लिखता हूँ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है बेटा, suppose I have an object here in front of the mirror in form of this arrow. ठीक है बेटा, तो इमेज इसकी कैसे बनती है या आप याद रखेंगे, हमेशा के लिए आप याद रखेंगे। ये एक लाइन डालेंगे आप पहले यहाँ पर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर। अच्छा, रे ऑफ लाइट जो ही यहाँ पर हिट करेगी टॉप पे, फॉर एग्जांपल आप सामने है मिरर के या कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस रे ऑफ लाइट हिट्स दिस सरफेस, दिस मिरर एंड विल बाउंस बैक। क्योंकि ये 90 डिग्री पे इस पे हिट करती है तो वापस भी 90 डिग्री पे ही आएगी, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। दूसरी, रे ऑफ लाइट अगर मैं यहाँ पर हिट करती है, दिस रे ऑफ लाइट, और चूंकि ये मैंने पहले ये नॉर्मल बना के रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये रे ऑफ लाइट वापस आएगी, ये रे ऑफ लाइट वापस आएगी, मगर ये जो एंगल है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस एंगल बेटा ये सेम होना चाहिए। इसके बाद मेरी आंख फॉर एग्जांपल यहाँ पर, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इसको, ये रे ऑफ लाइट चूंकि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ, तो ये रे ऑफ लाइट जो है ये मुझे लगेगी कि ये यहाँ कहीं से आ रही है। मेरा दिमाग मेरे को बोलेगा कि नहीं भाई साहब, ये रे ऑफ लाइट यहाँ कहीं से आ रही है। इसके बाद अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को देखूंगा, ये रे ऑफ लाइट मेरे को यहाँ दिखेगी, यहाँ से आते हुए, दे विल मीट एट दिस पॉइंट। सो these rays of light they will appear to meet at this point, suppose, और जहां पर ये मीट करेंगी वहां पर हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज बनती है प्लेन मिरर से। इस इमेज की क्या खुसूसियत है वो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास एक मिरर है, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, एक रे ऑफ लाइट हमने ड्रॉ की, ये मुझे लग रही है यहाँ से आ रही है कहीं, क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलता है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट पाथ। दूसरी रे ऑफ लाइट ये गई, जो ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और उसी एंगल से ये नॉर्मल है, तो उसी एंगल से वापस आएगी, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दिस विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, और जहाँ पर ये मीट करेंगी ये इमेज बन गई। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि ये इमेज बन गई है रेज ऑफ लाइट
के मिलने से, बट रेज ऑफ लाइट दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग एट दैट पॉइंट, they appear to meet at this point. Such image which is formed by from the rays of light, the image formed is from the rays of light which appear to meet at a point. They are not actually meeting at a point, but they appear to meet at that point. और उस image को हम बोलते हैं virtual image. So number 1 है, the image formed by plane mirror is virtual in nature. Virtual image. The rays of light are not actually meeting at a point, they appear to meet at a point, so virtual image. Number 2, it's formed behind the mirror, obviously. नंबर 3, जो साइज इस इमेज का ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का भी है. सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और नंबर 4 विच इज इंपॉर्टेंट, ये तो एरो है, दिस इज सिमेट्रिकल, तो वैसी की वैसी इमेज यहाँ बन गई. बट अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो सिमेट्रिकल ना हो, जैसे P ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसकी इमेज बनेगी ऐसे बेटा. इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन. हमारी इमेज भी जब हम शीशे के सामने बैठते हैं तो हमारी भी इमेज लेटरल इन्वर्शन होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है. चूंकि हम सिमेट्रिकल है तो हमें उसका एहसास नहीं होता. जैसे ये एरो बिल्कुल एरो बना, लेकिन जो ही हमने P मिरर के सामने रखा तो वो लेटरल इन्वर्शन उसका हुआ. तो द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड. So the image formed by a plane mirror is virtual in nature. It is formed behind the mirror. Its size is same as that of the object and is laterally inverted. अब आपको ये भी समझ आया होगा कि एम्बुलेंस पे जो कि एमरजेंसी सर्विस है उसमें ऐसे लिखा रहता है AM उल्टा लेटरली इन्वर्टेड, ताकि उसकी इमेज जब लेटरल इन्वर्शन हो जाए तो वो सीधे दिखे. कोई गाड़ी वाला अगर सामने मिरर में पीछे आती हुई एम्बुलेंस को देखे तो वो पढ़ सके कि हाँ ये एम्बुलेंस है, क्योंकि उसमें टेढ़ा लिखा है तो लेटरल इन्वर्शन, टेढ़े का लेटरल इन्वर्शन सीधा हो गया. थैंक यू सो मच.